Hello, good morning students and most welcome on my YouTube channel Math Mentor. So today I am going to start the next MCQs of the topic permutation and combination. In previous some video lecture we completed first 30 MCQs of the same topic permutation and combination. I have made a worksheet of 50 MCQs. It means only 20 MCQs are remaining and all these 50 MCQs are the most important and most selected MCQs from the renowned books of MST CET. Okay, so let's finish last 20 MCQs from the same topic permutation and combination. So write the question number 31. Listen the question number. This is the question number 31. NPR is equal to 120. NPR is equal to 120 and NCR is equal to 20. NCR is equal to 20 and we have to find the value of n comma r. Okay. So n factorial divided by n minus r factorial. This is a formula of NPR. NCR is n factorial divided by r factorial into n minus r factorial is equal to 20. Right? So here this is equation first, this is equation second. Equation first को equation second से divide करेंगे. So n factorial divided by n minus r factorial into ये ऊपर जाएगा after division n minus r factorial divided by n factorial which is equal to 120 divided by 20. So this is equation first, this is equation second. Divide equation first by second. Now this is 26 n minus r factorial cancel, n factorial cancel, r factorial is equal to 6. So 6 is 3 factorial. So the value of r is equal to what? 3. So value of r is equal to 3. Now we have to find the value of n. So n की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर r की वैल्यू पुट करो. np3 इज इक्वल टू 20. सो बाय ट्रायल एंड एरर मेथड हम इसको सॉल्व करेंगे. n की जगह पर 6 रखो. 6p3 डेफिनेटली 120 मिलता है. 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 n 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इज 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120. 6 into 5 into 4 into 3 factorial divided by 3 factorial. So ये 5 4s are 20, 26 are 120. So here n की वैल्यू कितने आ गई? 6. So n is 6 and r is 3. So this is the answer. Check the option, you will get the correct. Okay, so after completion of this, now start 32. So option number question number 31 का आंसर क्या है? D. Now 32. Look at the exam MCQ number 32. NPR is equal to 60 40 800 and NPR same example NCR is equal to 120. So यही प्रोसीजर है. डिवाइड करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टर. हमें फाइंड करना है n की वैल्यू. So is equal to 6048000 divided by 120. So this term cancel, n factorial cancel. So this will be 5040. This is r factorial is equal to 5040. 5040 is 7 times 720. R factorial is equal to 7 into 6 factorial. This is the value of 6 factorial. So r factorial is equal to 7 factorial. This implies r is equal to what? 7. Now हमें क्या फाइंड करना है? n की वैल्यू. So by trial and error method हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे. अगर r 7 है
सो 31 में 32 में हमें n नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में करेक्शन करो, वहाँ r फाइंड करना था, क्वेश्चन में करेक्शन करो, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो 31 का डी ऑप्शन और 32 का भी कितना है, डी ऑप्शन। दिस टू MCQs आर वेरी मच सिमिलर। ओके, सो विल स्टार्ट 33 एंड 34। Now after completion of 31 and 32, let's see the MCQ number 33. Here we have to find the value of R. When 16C5, look at the example 33. (16C5) plus 16C6 plus 16C7 17C7 प्लस वहाँ पर 18C8 होना चाहिए इज इक्वल टू 19CR। वहाँ एक यहाँ पर भी एक करेक्शन है 19CR एंड हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R। यहाँ पर 18 होना चाहिए, करेक्शन को एग्जाम्पल में MCQs में देयर शुड बी 18। सो हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन इज दिस NCR minus 1 प्लस NCR दिस इक्वल टू N plus 1 CR। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर देखो 16C5 है, 16C6 है, सो दिस R minus 1, दिस इज N, R minus 1, N is same. So this we can write for this particular, this is 17C6, 70C6, 70C7, 18C8 is equal to 19CR. So most important property of combination this. Again, NCR minus 1, NCR, 7 minus 1, 6. So we can write 18C7. 18C7, 18C8 is equal to 18CR. NCR minus 1, 8 minus 1 is 7. So for particular this we can write 19C8 is equal to 19CR. So this implies R is equal to what? 8. So R is equal to 8 भी हो सकता है और R is equal to 11 भी हो सकता है। Why 11? Because 19 minus 8 is what? 11. 19C8 and 19C11 are same. So R की वैल्यू 8 भी आ सकती है, R की वैल्यू 11 भी आ सकती है। So what is the option of 33? 33 का ऑप्शन C है। Okay. So important this property. So remember this property NCR minus 1 plus NCR is equal to N plus 1 CR. Okay. So these questions are very very important and most selected. मैंने 50 MCQs लिए लेकिन बहुत important MCQs है। Okay. Now listen now 34. Okay. What is MCQ number 34? 10C4 plus 10C5 is equal to 11CR. Then 4 लिखा है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर R है। ये भी सेम है, 10C4 plus 10C5 is equal to 11CR. So सेम है, यहाँ पर 11C5 लिख सकते हैं, 11CR. So what is the value of R? R is equal to 5 और R is equal to 6. 11 minus 5 is what? 6. So 5 और 6. So यहाँ पर सिर्फ 5 ऑप्शन है। So ऑप्शन क्या है यहाँ पर? B. Okay. This is the completion of 33, 34. Now 35. 35 is given what? NP3 is equal to 24. बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। NP3 is equal to 24. सो बाय ट्रायल एंड एरर मेथड भी कर सकते हैं। यहाँ पर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल, नहीं तो डायरेक्टली n की वैल्यू पुट करो। n क्या है? 3 4 5 6। 3 तो नहीं लग सकते, 3p3 24 नहीं आ सकता, हम लिखेंगे 4p3 इज इक्वल टू 24। ट्रायल एंड एरर मेथड से 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इज 1 फैक्टोरियल इज 1
इज इक्वल टू 24 और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 डेफिनेटली आती है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 देखो कितना आता है 24 मीन्स बाय ट्रायल एंड एरर मेथड कितना आ गया आंसर 4। ओके बाय फार्मूला कर सकते हैं, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से भी कर सकते हैं। आवर आंसर इज व्हाट n इज इक्वल टू 4। सो 35 का ऑप्शन क्या है बी है राइट। 33 34 35 दिस इज कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट 5 MCQ। ओके इंपॉर्टेंट है, हम 36 ट्राई करेंगे। Next question number 36. Number of ways of selecting a cricket 11 from 14 players. क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है, 14 में से हमें 11 सेलेक्ट करना है। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल। सेलेक्टिंग है तो हमें कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज MCQ नंबर 36। 14 में से 11 सेलेक्ट। इट इज़ लेंथी कैलकुलेशन, वी कैन राइट 14C3। 14 minus 11 is 3। 14C3 is 14, 13, 12 तीन बार डिक्रीजिंग 1 2 3 3 2 जा 6 6 2 जा 12 14 इंटू 26। सो इसका मल्टीप्लिकेशन करो 364 आंसर आता है। सो ऑप्शन क्या बनेगा सी। ओके नाउ 37 बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। वी हैव टू सेलेक्ट a cricket team of 11 from 14 players. So 14C11. So देखो 37 क्या है, a person has 12 friends of whom 8 are relatives. टोटल उसके 12 फ्रेंड्स है, उसमें से 8 रिलेटिव्स हैं। सो 8 रिलेटिव्स है, सो ऑब्वियसली रिमेनिंग 4 आर ओनली फ्रेंड्स। इन हाउ मेनी वेज कैन बी इन्वाइट 7 गेस्ट, उसको 7 गेस्ट इन्वाइट करना है आउट ऑफ 12। तो ऑफ हुम 5 मस्ट बी रिलेटिव, उसमें से 5 रिलेटिव होना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टोटल 12 फ्रेंड्स हैं, 12 फ्रेंड्स, उसमें से 8 रिलेटिव है। सो रिमेनिंग आर ओनली फ्रेंड्स, ओनली फ्रेंड्स। 12 में से 8 रिलेटिव है और ऑब्वियसली 4 क्या हो गया ओनली फ्रेंड्स हो गया। सो उसको एक इनवाइट करना है 7 गेस्ट, 7 गेस्ट को इनवाइट करना है आउट ऑफ 12 ऑफ हुम 5 आर रिलेटिव, उसमें से 5 रिलेटिव होना चाहिए। 7 गेस्ट इनवाइट करना है, उसमें 5 रिलेटिव होना चाहिए एंड ऑब्वियसली 2 क्या होना चाहिए ओनली फ्रेंड्स। 5 रिलेटिव 7 गेस्ट है, उसमें से 5 रिलेटिव होना चाहिए, तो बाकी 2 क्या होंगे ओनली फ्रेंड्स होंगे। 5 रिलेटिव्स आउट ऑफ 8, 8C5 एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन 4C2 4C2। सो 8C5 को 8C3 भी लिख सकते हैं और ये 4C2 को ऐसे रहने दो। 8C5 मीन्स 8C3 8 माइनस 5 इज व्हाट 3। तो इसको कैलकुलेट करना है, बस यहाँ पर कैलकुलेशन करता हूँ मैं। 8 इंटू 7 इंटू 6 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 1 इंटू 2 3 2 जा 6 2 2 जा 4 8 7 जा 56 56 इंटू 6। सो मल्टीप्लाई करो 56 इंटू 6 336 आता है आंसर। आप मल्टीप्लिकेशन करो। सो इट इज ऑप्शन व्हाट ए। सो इम्पोर्टेंट सिलेक्शन ऑफ 7 गेस्ट, उसमें से 5 रिलेटिव और ऑब्वियसली 2 कौन से होना चाहिए नॉन रिलेटिव। नॉन रिलेटिव मीन्स ओनली फ्रेंड। सो 8 रिलेटिव इज ऑब्वियसली 4 आर नॉन रिलेटिव फ्रेंड्स मीन्स ओनली फ्रेंड्स। ओके सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 36। नाउ विल स्टार्ट द 38। सो 38 में क्या है देखो, देयर आर 4 टीचर्स एंड 16 स्टूडेंट्स। There are 4 teachers and 16 students. So annual CET एग्जाम में ऐसा आपको लिखना है, कितना है टीचर्स 4 टीचर्स है, सो 4 में T लिखना है और कितने स्टूडेंट्स है 16 स्टूडेंट्स है, सो 16 AS लिखना है। सो इट बिकम्स व्हाट 20। या दिस इज सिस्टम टू सॉल्व द MCQs ऑफ परमुटेशन, बहुत डिटेल में नहीं लिखना है। एंड कमिटी ऑफ 5 पर्सन, कमिटी कितनी पर्सन्स की है 5 पर्सन, ये 5 पर्सन कमेटी शॉर्ट में लिखना है राइट।
is to be formed. Number of ways in which this can be done so as it include exactly 3 teachers. जो भी कमेटी बनाने हैं 5 पर्सन में, उसमें से 3 क्या होना चाहिए, टीचर्स होना चाहिए. 5 पर्सन में 3 टीचर तो एग्जैक्टली होना चाहिए, बराबर 3 टीचर होना चाहिए. सो ऑब्वियसली 2 क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स. So 3 teachers can be selected from 4C3 and 2 students can be selected from 16C2. So इसको 4C3 को हम 4C1 भी लिख सकते हैं, 16C2 as it is. So this implies 4 into 16 into 15 divided by 1 into 2. 2 8s are 16. 4 into 15 8s are 120. 480 आंसर आएगा उसका. ऑप्शन देखो 480 है क्या, सी ऑप्शन है. दिस इज ऑप्शन नंबर सी. सो कमिटी ऑफ 5 पर्सन्स इन विच एग्जैक्टली 3 टीचर्स शुड बी देयर. सो एग्जैक्टली 3 टीचर्स में ऑब्वियसली बच्चे जो कमिटी मेंबर है सो क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स होना चाहिए. ठीक है, 36, 37 एंड 38. ओके, नाउ विल स्टार्ट द 39. देखो 39 क्या है, सेम ऐसे टीचर की कमिटी है, 4 टीचर 16, ये सेम एग्जांपल शायद. हाउ मेनी वेज सो एज इट इंक्लूड्स एटलीस्ट 3 टीचर. लास्ट में एग्जैक्टली 3 टीचर्स थे, यहाँ पर क्या है एटलीस्ट 3 टीचर्स. एटलीस्ट का मीनिंग क्या है, कम से कम 3. 4 भी टीचर चलेंगे, उसमें से ज़्यादा भी चल सकते हैं. ओके, सो ये थोड़ा डिफरेंट लेवल के एग्जाम्पल है. यहाँ पर मैं सॉल्व करके देता हूँ. 38. सो सी द MCQ नंबर 38. आई थिंक सेम एग्जाम्पल है, सिर्फ क्वेश्चन डिफरेंट है. 4 टीचर्स 16 स्टूडेंट्स, ये सेम. 39. कमिटी ऑफ 5 पर्सन इज टू बी मेड, इज टू बी फॉर्म. हाउ मेनी वेज सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 3 टीचर्स. एटलीस्ट 3 टीचर्स. 3 टीचर्स, सेम एग्जाम्पल है. सो अगर हमने 3 टीचर लिए 4C3 तो कितने स्टूडेंट्स लेना पड़ेंगे, 2. 1 मोर केस, और मीन्स प्लस 3. हम चारों भी टीचर ले सकते हैं 4C4. अगर चारों टीचर लिए तो एक तो स्टूडेंट्स लेना ही पड़ेगा. वाई, बिकॉज कमिटी तो 5 पर्सन की है. इस कमिटी इज मेड टू फॉर्म फॉर 5 पर्सन. So 4 plus 1 5, 3 plus 2 5. 3 teacher, obviously 2 students. 1 more case, or means addition. 4 teachers, 5 students. 1 students. 5 teachers, हम पाँचों भी टीचर्स ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास 5 टीचर है क्या, नहीं है, 4 ही टीचर हैं. तो हम 5 टीचर नहीं ले सकते, बिकॉज एटलीस्ट 3 में 5 भी है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल 4 टीचर है. सो दिस इज ऑल पॉसिबल अवेलेबिलिटी. 4C3 मीन्स 4C1. 4C1 इज 4. 16C2 ये तो हमने अभी किया था, प्लस 4C4 इज 1. 16, ये 480 आया था, प्लस 16. आंसर इज व्हाट, 496. देखो 496 आंसर है क्या, 496 ए ऑप्शन. ओके, सो दिस इज द ए ऑप्शन. नाउ वी विल स्टार्ट द 40. देखो 40 क्या है. Read the question number 40. A team of 11 cricketers is to be selected. Chosen means selected. Selection का example means combination का example है. From 9 batsmen and 6 bowlers. So वहाँ पर total 15 available है, उसमें से 9 batsmen है, 6 bowlers है. So ये भी बहुत ही different और important example है. हम यहाँ से start करेंगे. पहले रीड द क्वेश्चन केयरफुली. पहले क्वेश्चन रीड करो, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे. देखो क्या है, हमें 11 क्रिकेट प्लेयर की टीम बनानी है. क्वेश्चन नंबर क्या है, 40. टोटल प्लेयर्स 11. ये सेलेक्ट करना है 11. उसमें से 9 बैट्समैन हैं, बैट्समैन प्लस 6 बॉलर्स हैं, बॉलर्स. 9 बैट्समैन एंड 6 बॉलर्स टू गिव अ मेजॉरिटी ऑफ बैट्समैन. सो
जो 11 सेलेक्ट करना है उसमें बैट्समैन की मेजॉरिटी होना चाहिए, एक इम्पोर्टेंट कंडीशन दिया है। सेलेक्ट करना है 11 प्लेयर्स, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल टीम्स विच आल्सो इंक्लूड एटलीस्ट 3 बॉलर्स, कम से कम 3 बॉलर होना चाहिए और बैट्समैन की मेजॉरिटी ज़्यादा होनी चाहिए फॉर 11 प्लेयर्स। ओके, कम से कम 3, सो हम क्या करेंगे 9C इंटू 6C और 9C इंटू 6C और 9C इंटू 6C, अच्छा लिख के लगता हूँ मैं 11, कम से कम 3 बॉलर, कम से कम 3 बॉलर, कम से कम 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते हैं। अगर 3 बॉलर हो गए तो बैट्समैन कितने होने चाहिए, बैट्समैन होने चाहिए 8, बिकॉज 11 प्लेयर्स, हमें 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करना है, राइट। 8 + 3 11, अगर 4 बॉलर लिए तो बैट्समैन कितने लेने पड़ेंगे 7, 7 + 4 11, अगर 5 बॉलर लिए तो बैट्समैन कितना लेना पड़ेगा 6, 6 + 5 11। और भी पॉसिबिलिटी, हम ऑल बॉलर 6 ले सकते हैं, अगर हमने 6 बॉलर लिए तो बैट्समैन कितने बन जाएंगे 5, तो 5 बैट्समैन 6 बॉलर्स, सो मेजॉरिटी ऑफ बैट्समैन एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या, नहीं। सो ओनली दिस आर द पॉसिबिलिटी, मेजॉरिटी ऑफ बैट्समैन बट एटलीस्ट 3 बॉलर्स, एटलीस्ट 3 बॉलर्स मीन्स एटलीस्ट 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, 5 भी पॉसिबल है, 6 पॉसिबल नहीं, बिकॉज व्हाट मेजॉरिटी ऑफ बैट्समैन दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ओके, 8C8 9C8 मीन्स 9C1 6C3 9C2 6C2 9C3 6C5, 6 - 5 1, 6 - 4 2, 9 - 7 2, 9 - 6 3, 9 - 8 1। ये कैलकुलेशन के लिए हम प्रॉपर्टी अप्लाई किया, 9 6 5 4 1 2 3, इम्पोर्टेंट ये कंडीशन, बाकी तो मैं कैलकुलेशन आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, ये तो नहीं सॉल्व करके देना चाहिए। 6 5 1 2 9 8 7 1 2 3 इंटू 6, देखो 3 2 6 कैंसल, 2 2 4 4 2 8 3 2 6, 9 इंटू 5 5 4 20, 9 2 18, 6 5 30, अब ये कितना हुआ है 9 इंटू 56 180, 540 प्लस ठीक है 0 0 4 4 0 4 8 2, 5 + 5 10 प्लस 11 + 1 12, 1 2 2 4 आंसर है कि यहाँ पर 1 2 2 4 आंसर है ये ऑप्शन। सो ये भी आपको सिंगल अटेम्प्ट में करना है, ठीक है। इसको 1.5-2 मिनट लग भी सकते हैं कैलकुलेशन में, लेकिन एक ही अटेम्प्ट में करो। अगर एक अटेम्प्ट में आपका आंसर नहीं आया और वहाँ पर नन ऑफ दिस ऑप्शन है तो आप नन ऑफ दिस ऑप्शन को टिक करेंगे, क्लिक करोगे, राइट, क्लिक करना है वहाँ पर, ऑनलाइन एग्जाम है। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में, सिंगल अटेम्प्ट में आपको एक्यूरेट आंसर लाना है। गलत आंसर आ गया तो नन ऑफ दिस को आप क्लिक करोगे तो दैट गिव्स अ रॉन्ग आंसर, मीन्स आपको मार्क नहीं मिलेंगे। ओके, सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ 40। नाउ 41, देखो 41 में क्या है, फ्रॉम 4 अकाउंटेंट 3 लॉयर्स एंड 5 सेल्समैन, a committee of 4 persons is to be formed, number of different committee which include at least 1 lawyer and at least 1 salesman. So at least 1 lawyer, at least 1 salesman, देखो क्या है पॉसिबिलिटी, क्या है, मैं यहाँ पर ही लिखता हूँ, ये भी देखो 4 अकाउंटेंट प्लस 3 लॉयर प्लस और क्या है 5 सेल्समैन, 5 सेल्समैन, अकाउंटेंट लॉयर सेल्समैन, 4 + 3 7 + 5 12 है। हमें कमेटी बनानी है 7 पर्सन की, कमेटी 7 पर्सन,
कंडीशन क्या है, एटलीस्ट वन लॉयर एंड एटलीस्ट वन सेल्समैन, एटलीस्ट वन लॉयर एंड वन सेल्समैन वहाँ होना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, हम सब लिखेंगे 4C 3C 5C प्लस 4C 3C 5C प्लस 4C 3C 5C, ये लिख के रख रहा हूँ। ये टेक्निक है सॉल्व करने की। आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि विद इन टाइम कैसे सॉल्व करना है। मैं बहुत सारी पॉसिबिलिटी लिख के रखता हूँ, ठीक है। एक लॉयर, ये लॉयर है, 3 लॉयर में से एक लॉयर और एक सेल्समैन, एक लॉयर एक सेल्समैन, तो कमेटी 7 पर्सन की है, तो 5 पर्सन बचे हैं, ये 2 हो गए, 5 बचे, 4 में से 5 ले सकते हैं क्या? नहीं, तो 4 में से 4 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 2 करता हूँ, एटलीस्ट बोला तो 2 पॉसिबिलिटी, एटलीस्ट 1 लॉयर, 2 भी ले सकते हैं, 4 + 1 + 2 7। अब यहाँ पर एटलीस्ट 1 ये 3 + 1 4 और यहाँ पर 3, 4 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7, ये 1 1 कांस्टेंट। अब यहाँ पर ये 2 करता हूँ, ये 1 करता हूँ, 2 + 1 3, तो यहाँ पर 4। सो ये 2 करता हूँ, ये भी 2 करता हूँ, ये 2 किया तो इसको मैं 3 कर सकता हूँ, 2 3, ये 2 + 2 4 + 3 7, 2 लॉयर 3 सेल्समैन, 3 सेल्समैन पॉसिबल है, ठीक है। अभी दोनों भी, तीनों भी लॉयर, तीनों भी सेल्समैन, एक अकाउंटेंट और भी बहुत पॉसिबिलिटी है। कैलकुलेशन मैटर करता है यहाँ पर। ये 2 1 हुआ, 1 2 हुआ, 1 3 हुआ, 3 1 नहीं हुआ, ये 3, ये 1, ये 3 और 4C 3C 5C, 1 3 हुआ, 3 1 हुआ, 1 2 हुआ, 2 1 हुआ, 2 2 भी हुआ, 3 3 भी हुआ, 1 1 2 2 3 3 2 3 1 3 3 1 हो गए। अब इससे और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। सो दिस इज़ द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। सो ये सब कैलकुलेशन आप करो। 4C 0 3C 1 4C 0 ये 1 1 × 3। अभी कैलकुलेशन आप करो, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमें 7% की कमेटी बनानी है, उसमें से एटलीस्ट एक लॉयर होना चाहिए और एटलीस्ट 1 सेल्समैन होना चाहिए। तो ये 1 1 लेने के बाद ये 5 नहीं ले सकते वो अकाउंटेंट, बिकॉज हमारे पास अवेलेबल अकाउंटेंट कितने हैं? सिर्फ 4 है। सो 1 2 तो ये 4 लेना पड़ेगा, 1 3 तो ये 3 लेना पड़ेगा, ये 2 1 लिया, तो ऐसा एक हर पॉसिबिलिटी आप चेक करो। दिस इज़ द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी to form the committee of 7 person in which 1 lawyer and 1 salesman must be there, right? So answer is what 755 इसका आंसर आना चाहिए। चेक करो, ये ऑप्शन है 755, ये ऑप्शन ठीक है। दिस इज 40 41। विल टेक नेक्स्ट। So look at the MCQ number 42. After completion of 41, we have to start 42. So number of diagonals of an octagon. Octagon means 8 sides. 42. So a shortcut है, and n-gon has n into n minus 3 by 2 diagonals. ये important shortcut. एंड n-gon मीन्स अगर पेंटागन है तो 5 है, हेक्सागन है तो 6 है, ऑक्टागन है तो 8 है। सो अब हमें ऑक्टागन की फाइंड करना है। सो n इज इक्वल टू 8। सो सिंपल आंसर 8 × 5 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 4 5 4 20।
So 20 diagonals. So this is answer. So इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकली मत सॉल्व करो, ये शॉर्टकट फॉलो करो। प्रैक्टिकली हम डायग्राम निकालते रहेंगे तो बहुत सारे कन्फ्यूजन हो सकता है, बट अगर ये शॉर्टकट फॉलो करेंगे n इंटू n माइनस 3/2 यू विल गेट द आंसर 20। सो 42 का आंसर क्या है? सी। ओके, नाउ 43। देखो 43 में क्या है, n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। सो हमें फाइंड करना है n। ओके, उसमें से ये ऑप्शन तो रॉन्ग है बिकॉज वहाँ पर -4 है, सो n इज़ नेवर निगेटिव। सो इसको रिड्यूस करेंगे n प्लस 1, एक -1 करने के बाद n हो जाएगा, -2 करने के बाद n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। सो कौन सा फैक्टोरियल हम रिड्यूस करते हैं? 7 फैक्टोरियल मीन्स व्हाट? 7 इंटू 7 माइनस 1, 7 माइनस 2, 7 माइनस 3। हम कहीं पर भी उसको स्टॉप करेंगे, उसको फैक्टोरियल लिखेंगे। ओके, सो दिस टर्म कैंसिल। सो n प्लस 1 इंटू n इज इक्वल टू 12। सो ट्रायल एंड एरर मेथड से 3 इंटू 4, सो n की वैल्यू 3 आ जाएंगे। 3 इंटू 4 इज 12, सो n इज इक्वल टू 3। ऑप्शन क्या है? सी। गॉट इट? दिस इज 43। नाउ 44। 44 इज डिफरेंट। 44 देखो क्या है? 44 दिस इज 1/8 फैक्टोरियल, 1/8 फैक्टोरियल, 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू प्लस 1/10 फैक्टोरियल। इट्स 10। इसको हम क्या करेंगे? सबका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम सबका डिनोमिनेटर सेम करेंगे 10 फैक्टोरियल। ये तो 1 आएगा, इसको 10 फैक्टोरियल करने के लिए 9 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 90 प्लस 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल। सो इट इज़ एब्सोल्युटली 101 अपॉन 10 फैक्टोरियल। सो ये आंसर है क्या? देखो यहाँ पर नहीं है। सो हम इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे ऑप्शन में, दैट इज ऑल्सो चैलेंजिंग कम। इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर 11 से 101 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 आ जाएगा। 11 इंटू 10 फैक्टोरियल इज 11 फैक्टोरियल। सो ये उसका आंसर बी ऑप्शन। 1111 डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल, दिस इज द ऑप्शन बी। एक्चुअल हमारा आंसर ये आया था, बट ये ऑप्शन में नहीं है। सो उसको कन्वर्ट करेंगे ऑप्शन में। ये आंसर है but which is also correct but not in option, so try to convert into correct option. Got it? Now next 45. Now हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर, सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 45। n इज नेचुरल नंबर, देन npn फाइंड करना है। 45 npn की वैल्यू कितनी आती है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल। सो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n इज 0 फैक्टोरियल। सो 0 फैक्टोरियल इज 1, सो ओनली n फैक्टोरियल। सो ये n फैक्टोरियल आता है, n फैक्टोरियल यहाँ पर आंसर नहीं है, तो ये ABCD का कौन सा ऑप्शन n फैक्टोरियल आता है? तो डी ऑप्शन का n फैक्टर आता है, np n माइनस 1। देखो क्या आता है? n फैक्टोरियल n माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। सो इट इज व्हाट? n फैक्टोरियल। सो दिस इज द डी ऑप्शन विच इज अ करेक्ट। ओके, सो 46 नाउ। 46 में क्या है? n फैक्टोरियल 1 है। सो व्हाट इज n? n क्या है? 0 एंड 1। एक तो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है, दिस इज 47 नाउ। इस ईजी है बट इट हैज़ अ कंसेप्ट, इसको भी एक कंसेप्ट है। नाउ 47, 48, 49। 47 सॉल्व करेंगे क्या है? m फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। कब पॉसिबल है? तो m 0 हो सकता है, m 0
N1 M1 N0, ये भी करेक्ट है। ये तो ऑप्शन उसमें नहीं है, तो दोनों 0, दोनों भी 1, so all options are correct, so all of this, so D option is correct, so D option. Okay, now 48 में क्या है, 12 PR इज इक्वल टू 30/20, 12 PR इज इक्वल टू 30/20, सो R फाइंड करना है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो ट्रायल एंड एरर मेथड से करो, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30/20। R की वैल्यू 3 पुट करो, R की वैल्यू 3 पहले स्टार्ट करो 3 से, सो 3 4 5 6 3 4 6 7, सो डेफिनेटली 3 सेटिस्फाई करेंगे। देखो कैसे, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 माइनस 3 इज 9 फैक्टोरियल, सो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, कट 12 इंटू 110, इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 1320, so that's why R is equal to what, 3, which is correct option is what, A. Okay, so now 49, read the question number 49। यहाँ पर word example है, from a group of 16 boys and 10 girls a committee of 4 girls and 2 girls is to be formed। so simple है, number of such forming a committee 16 boys है, 10 girls है, 16 boys 10, a committee of 4 boys और 2 girls is to be formed। so 4 16 में सेलेक्ट करना है 16C4 एंड 2 गर्ल्स 10 में से सेलेक्ट करना है, सो 10C2। इसका जो भी आंसर आएगा वही उसका आंसर है, 81900। आप चेक करो, ये आंसर आएगा, बी ऑप्शन है 81900। सो कमिटी में 4 बॉयज़ है और 2 गर्ल्स है, कोई कंडीशन नहीं है, 4 बॉयज़ आउट ऑफ 16, 2 गर्ल्स आउट ऑफ 10। वी हैव टू सेलेक्ट 4 बॉयज़ फ्रॉम 16 बॉयज़, वी हैव टू सेलेक्ट 2 गर्ल्स फ्रॉम 10 गर्ल्स, सो 16C4 into 10C2, so selection means what, combination, so this will be the answer after calculation। now we have to finish the last question, how many numbers between 10 and 100 10 and 100 में से 10, ये नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 15, 10 और 100, so it means first number is 11, last number is what, 99, means we have to form the 2-digit numbers, ये not including, this not including। how many numbers between 10 and 100 can be formed from the digits 3045? ये digits दिए 30456। if repetition is allowed, so ये जो this is a unit place, this is a ones place, सो टेंस प्लेस में हम 0 नहीं रख सकते, अगर 0 रख दिया तो ये 1 डिजिट नंबर हो जाएगा, सो एक्सेप्ट 0, सो इट इज़ आउट ऑफ 4 ways। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड फ्रॉम आइदर 3 or 4 or 5 or 6, 3 or 4 or 5 or 6, and remaining from the 4 places, this place can be filled from remaining 4, so it is what, 4 4s are 16, so 16 आंसर आना चाहिए, बी ऑप्शन। ठीक है, so this is the completion of this MCQs 50। okay, so this all MCQs are very important and most selected from the various books of MST CET। अगर आप बुक्स रेफ़र करना चाहते हो तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ये बुक्स रेफ़र करो, मार्वल करो, उत्तम पब्लिकेशन का करो, ये अपना नवनीत पब्लिकेशन का, ये 3 बुक अगर आपने सॉल्व किए फॉर MST CET, आई एम टॉकिंग अब्सोल्युटली अबाउट MST CET, सो ओनली ट्राई टू सॉल्व दिस 3 बुक्स, यू विल डेफिनेटली कवर 100 out of 100 marks for MST CET। okay, so this permutation and combination of 11th standard
for MST CET. This topic is completed. 50 MCQs for one question, maximum 2 marks, right? So this is the enough study for the permutation and combination. अगर आपने ये 50 MCQ carefully solve करे तो definitely you can cover the 1 MCQ. Okay. So today I will stop here. We will start next. We will be start next topic on the next video lecture. Okay. So stay tuned on this YouTube channel, Math Mentor, and try to subscribe my YouTube channel to see more information regarding board exam and MST CET exam. Okay, so thank you very much.